خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موج زن ہو اور پہاڑ اس کی طغیانی سے ہل جائیں۔ ایک ایسا دریا ہے جس کی شاخوں سے خدا کے شہر کو، یعنی حق تعالیٰ کے مقدس مسکن کو فرحت ہوتی ہے۔ خدا اس میں ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ خدا صبح سویرے اس کی کمک کرے گا۔ قومیں جھنجھلائیں، سلطنتوں نے جنبش کھائی، وہ بول اٹھا، زمین پگھل گئی۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ خداوند کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سربلند ہوں گا، ساری زمین پر سربلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور اپنی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تیرے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم پر یہ فضل کیا کہ ہم محفوظ رہیں۔ تو نے خداوند ہماری حفاظت کی، صحت دی ہے، اور تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ ہم دوبارہ سے آج عبادت کے لیے اپنے اپنے گھروں میں جمع ہو سکیں۔ اگرچہ خداوند ہم تیرے گھر میں نہیں آ سکے، لیکن پھر بھی خداوند ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تیرے بیٹے یسوع کے لیے شکر کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے زندہ ہونے کے وسیلے سے ہم یہ ایمان پاتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود اور اپنا تخت لگاتا ہے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ آج تیری موجودگی کے وسیلے سے ہر ایک گھرانہ برکت پائے، جہاں بھی تیرے لوگ اکٹھے ہو کر یا انفرادی طور پر ہمارے ساتھ عبادت میں شامل ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت مانگتے ہیں۔ تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے سبھی کو چھو اور برکت دے، تیرا ہاتھ ہر ایک پر بڑھ جائے، اور تو اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہر ایک کے ساتھ ہو، سبھی کی رہنمائی کر، ہماری مدد کر، تاکہ ہمارا تیری حمد و ثنا کرنا، تیرے کلام کو پیش کیا جانا اور تجھ سے مانگنا ہم سب کے لیے جو آن لائن ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے بھی ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ وہ ہمارے خیالات اور ذہان کو خداوند اپنی طرف لگا، اور دنوی سوچیں اور فکریں یسوع کے نام سے ہمارے ذہنوں سے دور ہو جائیں، تاکہ خداوند آج کی عبادت کے وسیلے سے ہم برکت پا سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔
آئے ہم سبھی مل کر اپنے ایمان کا اقرار رسولوں کے عقیدے کے الفاظ کی صورت میں کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح پر، جو روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، باری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک کلیہ کلیسیا پر، مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ خداوند کی تعریف میں ہم زبور نمبر 55 گائیں گے۔ زبور نمبر 55، زبور نمبر 55، تیجا حصہ، منتے میں یہوہ کے نعمہ کا دہائی۔ Sham Sumatu Bhayanu Mai Pariya
آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اس دعا میں بیٹی استعلا بشارت ہماری رہنمائی کرے گی. ہم خدا کا شکر کریں گے خداوند نے ہمیں صحت بخشی اور اس قابل کیا کہ آج علم اتوار کے دن عبادت کے لیے بیٹھ سکیں اور خداوند کو وقت دے سکیں. ہم خداوند سے دعا کریں گے خداوند رحم کرے, دنیا سے کرونا وائرس کو ختم کرے, ہماری حفاظت کرے. اور ایف سی کالج کے لیے خدا کی برکت مانگیں گے, ایف سی کالج کو چلانے والے افسران کے لیے خدا کی برکت مانگیں گے, یہاں پر کام کرنے والے سارے اسٹاف کے لیے خدا کی برکت مانگیں گے. اسی طرح پوری دنیا میں امن و سلامتی کے لیے بھی دعا مانگیں گے اور پوری دنیا کی بحالی کے لیے دعا کریں گے. خداوند رحم کرے, دنیا کو بحال کرے اور دوبارہ سے لوگ خدا کے گھر میں اکٹھے ہو سکیں, عبادت کر سکیں اور لوگ اپنے کام کاج کا آغاز کر سکیں. آئیں ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور استعلا بشارت اس دعا میں رہنمائی کریں گے. قدوس 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 پیارے ابدیت کے بادشاہ, سلامتی کے شہزادے خداوند, میں تیری نہایت شکر گزار ہوں اس گھڑی اس موقع کے لیے خدا یسوع مسیح کہ تو ہمیں اس لائق سمجھتا ہے تاکہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر دوسروں کے لیے باعث کا برکت ٹھہرے. خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, اس اکٹھے ہونے کے لیے تیری شکر گزار ہوں. اے خدا یسوع مسیح کہ تو نے ہمیں اتنے اچھے ساز آواز بخشے. اے خدا یسوع مسیح, یہ آزادی بخشی کہ ہم تیرے حضور اے خدا یسوع مسیح تیری مدح سرائی کرنے والے بن سکیں. اے خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو نے ہمیں چنا. اے خدا یسوع مسیح, شکر گزار ہوں میں ان لوگوں کے لیے جو اس وقت ہمیں آن لائن اے خدا یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں. تو ان سب کو اپنی حفاظتوں کا نام رکھ, ہر وائرس سے, ہر کمی کمزوری سے تو انہیں محفوظ رکھ. اے خدا یسوع مسیح, تاکہ اے خدا یسوع مسیح وہ ہمارے وسیلے سے برکت پائیں. اے خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو ان کو چھو اور پاک کر اس اے خدا یسوع مسیح اس چرچ کے لیے, اس ادارے کے لیے جو تیرے نام سے کہلاتا ہے. خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو اس کو بڑی برکت بخش. چلانے والے افسران کو, جتنے بھی فیکلٹی ممبر یہاں پر کام کرتے ہیں, تو ایک ایک کو چھو اور پاک کر. اے خدا یسوع مسیح, تاکہ یہ ادارہ اسی طرح تیرے نام میں بڑھتا چلا جائے. خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو پورے ملک کے حالات و واقعات سے سب کچھ جاننے والا خدا ہے. اس وبا کو اے خدا یسوع مسیح, اس عذاب کو جو ہمارے گناہوں کی خاطر اے خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آیا, تو یسوع نام سے ختم کر. تو اے خدا یسوع مسیح ہماری کمک ہے. خدا یسوع مسیح, تو مصیبت میں ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے. خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو ہمارے ہدیہ نذرانوں کو یاد رکھنے والا خدا ہے. خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو نے کہا جان دین تک وفادار رہو. اے خدا یسوع مسیح, تو میں زندگی کا تاج بخشوں گا. اے خدا یسوع مسیح, تو ہمیں ان حالات میں حکمت دلائی, فہم عطا کر, تاکہ ہم اے خدا یسوع مسیح تیرے وسیلے سے اور تیری کمک کے وسیلے سے اس وائرس سے اے خدا یسوع مسیح لڑائی کرنے والے بن سکیں. تو ہمیں یہ توفیق بخش تاکہ ہم ایمان سے ڈگمگائے نہیں. اے خدا یسوع مسیح, بلکہ تجھ میں بے وسط رہ کر اے خدا یسوع مسیح اپنے ایمان کے ساتھ تجھ سے مانگنے والے بن سکیں. اے خدا یسوع مسیح, تو ہمارے دل کو, ہمارے دھیان کو اپنی طرف لگا. اے خدا یسوع مسیح, تاکہ ہمارا دھیان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وقت تیری طرف لگا رہے. اے خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو ہمیں اپنے جلال اور اپنے گہرے بھیدوں سے مسا کر. ہم تو خاکسار ہیں خدا یسوع مسیح, اس لائق نہیں کہ تجھ سے اے خدا یسوع مسیح تیرے حضور آئیں, لیکن تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے. تو اپنے بندوں کو اے خدا یسوع مسیح ہمیشہ ہر بیماری سے, ہر کمی کمزوری سے محفوظ رکھتا ہے. تیرے شکر گزار ہوں. اے خدا یسوع مسیح, پورے ملک میں اے خدا یسوع مسیح اس وبا کو یسوع نام سے ختم کر. اے خدا یسوع مسیح, جتنے بھی لوگ اے خدا یسوع مسیح اس وقت تیرے حضور میں سرنگوں ہیں, تو ان ایک ایک کو چھو اور پاک کر. اے خدا یسوع مسیح, تیرے لوگ اے خدا یسوع مسیح تیرے حضور میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں, تو یہ توفیق بخش تاکہ سب ایک دوسرے اے خدا یسوع مسیح اکٹھے ہو کر پھر تیری بارگاہ میں آئیں اور اے خدا یسوع مسیح تیرے نام کو جلال دینے والے بن سکیں. اے خدا یسوع مسیح, اے خدا یسوع مسیح, تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہمیں جواب بخشتا ہے. تیرے شکر گزار ہوں. تو نے ایمان کی مضبوطی عطا کی ہے. تیری شکر گزار ہوں. اے خدا یسوع مسیح, تو نے ہمیں اتنی اچھی آوازیں بخشی ہیں, زندگی بخشی ہے. اے خدا یسوع مسیح, تیری شکر گزار ہوں. تو اے خدا یسوع مسیح ہماری اس دعا کو, التجا کو سن. اے خدا یسوع مسیح, اس کرونا وائرس کے وبا کو ختم کر. جہاں کہیں پہ بھی تیرے لوگ آباد ہیں, جو ہزار آسانیوں میں اے خدا یسوع مسیح, جو اس وائرس میں مبتلا ہیں, ان کو اے خدا یسوع مسیح نجات بخش, کیونکہ تو ہی نجات بخشنے والا خدا ہے. خدا یسوع مسیح, تو نے ہماری جان کی خاطر اے خدا یسوع مسیح اپنی جان کو فدیے میں دیا. اے خدا یسوع مسیح, ہم اس فدیے کو اپنی اے خدا یسوع مسیح یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. خدا یسوع مسیح, تو ہمیں ایسی توفیق بخش دے تاکہ ہم ہمیشہ سیدھا راستہ تلاش کریں. اے خدا یسوع مسیح, ہر وائرس سے, ہر کمی کمزوری سے تو ہمیں محفوظ رکھ. تو ہمیں بڑی برکت بخش, اپنے جلال کے لیے استعمال کر. تو ہماری دعاؤں کو سن اور قبول کر. آمین. خدا ان کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور 119 گائیں گے, 11واں حصہ. زبور نمبر 119, 11واں حصہ 119. تیری نجات کے شوق
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम पर ये फजल किया है कि हम तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हो जाएं। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू जिंदा खुदा है और तू हमारी जिंदगी में मौजज़ात करता है। खुदावंद, इस वक्त जहाँ भी तेरे लोग इबादत के लिए हमारे साथ शामिल हैं, सभी पर तेरी बरकत मांगता हूँ। खुदावंद, तू हमें से हर एक को छू और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से हम धुल जाएं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत से धुलकर हम पाक हो जाएं। खुदावंद, तू मौजज़ात का खुदा है, हम में से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा कर। और खुदावंद, दुआ करते हैं कि तेरे फजल के वसीले से आज हर एक जिस्म धुल जाए, बीमारियां दूर हो जाएं। यीशु के नाम से हम में से हर एक की जिंदगी में मौजज़ा हो और हम शिफा पाएं। खुदावंद, तू रहम कर। और खुदावंद, हमारी कलीसिया में जितने लोग किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, यीशु के नाम से वो महफूज हो जाएं। खास तौर पर खुदावंद यूनुस साहब के घराने के लिए, इसी तरह से खुदावंद भाई कमाल विल्सन के लिए, मिसेज रिश्बा कमाल के लिए, मिसेज नज़ीर ज़ियाई के लिए, और भी जितने हमारी कलीसिया में बीमार हैं जो दरख्वास्त किया उनके लिए दुआ की जाए। खास तौर भाई शहजाद लेवल के लिए भी दुआ करते हैं, भाई नईम तबस्सम के लिए भी, भाई इमानुएल के लिए भी दुआ करते हैं, बेटी शानसे के लिए दुआ करते हैं। तो इन सबको छू और शिफा दे तेरे बेटे यीशु के नाम से, सभी की जिंदगी में मौजज़ा। खुदावंद, हम खास तौर पर पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया तुझसे शिफा पाए। पूरी दुनिया को खुदावंद रूहानी तौर पर भी शिफा की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को जिस्मानी तौर पर भी शिफा की ज़रूरत है। खुदावंद, तू रहम कर। खुदावंद, तू हम में से हर एक की हिफाजत कर और कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से तो ख़त्म कर। खुदावंद, तू मदद कर और खुदावंद, तू पूरी दुनिया को बहाल कर दे। खुदावंद, तू बहाली का खुदा है, तेरे फजल के वसीले से बहाली मिलती है। खुदावंद, तू हम में से हर एक के भी साथ हो और पूरी दुनिया के लिए और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ करते हैं। हमारे मुल्क को बरकत दे, पूरी दुनिया को बरकत दे, पूरी दुनिया को शिफा बख्श दे और हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट्स हैं, यीशु के नाम से वो शिफा पाएँ। और खुदावंद, दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं, वो भी तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से शिफा पाएँ। तेरे फजल के वसीले से उनकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो और तेरी तरफ से औलाद की नेमत में मिले। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम एक और गीत गाएंगे, गीत नंबर 352, गीत नंबर 352। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। गीत नंबर 352, 352। Hallelujah, oh hallelujah.
इंजील और उसका 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 20वां बाब, उसकी 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। The Gospel of John, chapter 20, verses 24 to 29. कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तूमा, जिसे तमाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तूमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तूमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद न हो बल्कि इत्काद रख। तूमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया। मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआया रूम में गीत गाएंगे। गीत नंबर 348, 348, तेरा कलाम ज़माने में खुदावंदा। 348, 348 गीत नंबर। कलाम ज़माने में है खुदावंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावंदा। असर दिखा के रहा जिसमें रूप में तेरा
और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम दुआ करके अपने आप को खुदा की हजूरी में देंगे और उसकी तरफ से हिकमत और दानाई मांगेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने लोगों को हिकमत और दानाई बख्शता है। खुदावंद हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर इंसान हैं, हमारी अकल भी नाक़िस है, हमारा इल्म भी महदूद है, लेकिन तेरा शुक्र हो कि तेरे फजल के वसीले से हम बरकत पाते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमारी रहनुमाई कर और हिफाजत कर, हमारे ख्यालात और ध्यान को तो अपनी तरफ लगा और हमें पाक रूह का मसा और मामूली बख्श दे, ताकि दुनिया ख्यालात से हमारी नज़र हट जाए और हमारी नज़र, हमारा ध्यान, हमारा दिल तेरे कलाम की तरफ लग जाए। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जैसा कि अजीज़ों, हम गुज़श्ता 3 अतवारों से ईस्टर के बाद उन वाक़यात को देख रहे हैं जिसमें यीशु मसीह ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर किया। आज भी हम खुदावंद यीशु मसीह का अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होने के बारे में ही देखेंगे, और ख़ास तौर पर आज की जो तिलावत आपने सुनी है इसमें खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस तूमा और उसके साथ जो शागिर्द थे जिन पर यीशु पहले ही ज़ाहिर हो चुका था, उन पर ज़ाहिर हुआ। अगर हम मुक़द्दस लूका की इंजील में देखें तो मुक़द्दस लूका की इंजील में से हमने इमाउस की राह पर 2 शागिर्दों के बारे में देखा। फिर उसके बाद जब वो 2 शागिर्द बाकी शागिर्दों के पास आए और उन्हें यीशु के बारे में बताया और फिर वो यकीन नहीं कर पा रहे थे और यीशु उन पर ज़ाहिर हुआ। हमने दोनों तरह के वाक़यात को देखा कि यीशु मायूस शागिर्दों के साथ रहा, फिर यीशु खौफज़दा शागिर्दों के दरमियान आया, और फिर यहाँ पर एक और शागिर्द जो कि उन 12 में से ही था, और 24वीं आयत में लिखा है कि उन 12 में से एक शख्स, ये 12 वो शागिर्द थे जिन्हें यीशु ने चुना था। और मुक़द्दस लूका की इंजील के 6 बाब की 15वीं आयत में इन 12 शागिर्दों के नाम हमें मिलते हैं, और मुक़द्दस तूमा उन्हीं 12 शागिर्दों में से एक शख्स था जिन्हें यीशु ने चुना। और मुक़द्दस लूका की इंजील के 9वें बाब में फिर यीशु का अपने शागिर्दों को मुकर्रर करना, उन्हें भेजना, मौजज़ात के लिए, शिफा के लिए, बदरूहों को निकालने के लिए अख्तियार देकर भेजना, उनमें मुक़द्दस तूमा शामिल था। और इस वक्त भी मुक़द्दस तूमा वो शागिर्द था जब यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, जब वो खौफ की हालत में बंद किए हुए अपने आप को और अपने आप को महफूज समझ रहे थे, उस वक्त मुक़द्दस तूमा उनके साथ नहीं था। और यहाँ पर यह हवाला ये बताता है कि जब बाकी शागिर्दों ने जिन पर यीशु ज़ाहिर हुआ, उन्होंने जब मुक़द्दस तूमा के साथ इनका जिक्र, यीशु का जिक्र किया, तो उसने यकीन करने से इनकार कर दिया। उसने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख न देख लूँ और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूँ, हरगिज़ यकीन न करूँगा। यहाँ पर मुक़द्दस तूमा बाकी शागिर्दों से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देता है, और ये वो रद्द-ए-अमल है जो बाकी शागिर्दों का भी उस वक्त था जब तक उन्होंने यीशु को नहीं देखा था। मुक़द्दस तूमा को एक शक करने वाले, शकी शागिर्द के तौर पर जाना चाहता है, लेकिन मुक़द्दस तूमा का अगर हम कैरेक्टर नए अहदनामे में देखें, अनाजीर में देखें, तो मुक़द्दस तूमा उन शागिर्दों में शामिल है जिन्होंने बड़ी वफादारी के साथ यीशु का साथ देने का अहद बांधा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 10वें और 11वें बाब में हमें 2 वाक़यात मिलते हैं जिसमें मुक़द्दस तूमा बड़े वाज़ेह अंदाज में यीशु के साथ वफादारी निभाता है। पहला वाक़या, जब खुदावंद यीशु मसीह ईद तजदीद के मौके पर यहूदियों के साथ बहस करते हैं और अपने आप को बाप और मैं, बेटा बाप एक है, यानी मैं और बाप एक हैं, ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। और मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में लिखा है कि लोगों ने उसको संसार करने के लिए पत्थर उठाए, लेकिन उसके बाद यीशु वहां से चला गया। 11वें बाब में यीशु दोबारा से लाज़र को जिंदा करने के लिए चलते हैं और अपने शागिर्दों को भी कहते हैं कि आओ चलें, यहूदिया को चलें। वहां पर शागिर्द दोबारा से यीशु से सवाल करते हैं, और उनमें लोगों में मुक़द्दस तूमा भी शामिल था। यीशु को उन्होंने कहा, रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। जब यीशु को लेकर चला तो फिर यीशु ने अपने जाने की ख्वाहिश का
اور लाजर को जिंदा करने के लिए जाने के मकसद का इजहार किया, तो फिर तूमा उन शागिर्दों में से पहला शख्स था जिसने कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। मुकद्दस तूमा इस वाक़े में अपने आप को एक वफादार शागिर्द साबित करता है। यीशु के साथ मरने के लिए दूसरे शागिर्दों को एनकरेज करता है। यूहन्ना की इंजील के 11वें बाब और उसकी 8वीं आयत में और ये हमें जिक्र मिलता है कि मुकद्दस तूमा बाकी शागिर्दों को हौसला अफजाई देता है, कहता है कि आओ हम उसके साथ चलें ताकि उसके साथ मरें। लेकिन उसके बाद यीशु की मसलूबियत के वक्त सारे ही शागिर्दों की वही हालत थी जो तूमा की हालत थी, लेकिन वो शागिर्द तब्दील इसलिए हुए कि यीशु उन पर जाहिर होता रहा, यीशु उनको मजबूत करता रहा। तूमा क्योंकि उस रफाकत से महरूम रहा जब शागिर्द इकट्ठे थे और यीशु उन पर जाहिर हुआ। तूमा के शक में मुब्तला होने का एक बड़ा सबब भी यही कि मुकद्दस तूमा ने उस रफाकत को मिस किया, खो दिया जब सारे शागिर्द जमा थे। यकीनन तूमा उन शागिर्दों में शामिल था जो सभी यीशु की मसलूबियत के वक्त भाग गए, जान बचाने के लिए छुप गए। लेकिन जब दोबारा से वो इकट्ठे थे और दुआ कर रहे थे, तूमा उनके लिए साथ नहीं था। शायद तूमा दोबारा से अपने कामकाज के लिए चला गया, शायद तूमा ने ये समझ लिया कि यीशु कभी जिंदा नहीं होगा, शायद तूमा शक में मुब्तला था, शायद तूमा मायूस होकर अपने रास्ते फिर से जुदा कर चुका था। इन सारी बातों में हमें आज जिस बात की तरफ देखने और सीखने की जरूरत है वो यीशु का एक ऐसे शागिर्द पर जाहिर होना जो अपने शागिर्दों की अपने साथियों की रफाकत को भी छोड़ चुका था, जो यीशु के बारे में मायूस था और यीशु के जिंदा होने की खबर का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। इस पर हम गौर करेंगे और सीखेंगे। यानी जिस तरह से हमने ये सीखा कि यीशु मायूस शागिर्दों के साथ था, यीशु खौफजदा शागिर्दों के साथ था, आज हम सीखेंगे कि यीशु शकी लोगों के साथ या कमजोर ईमान लोगों के साथ किस तरह बर्ताव करते हैं। और यहाँ पर यीशु ने एक कमजोर शागिर्द के सामने जाहिर होकर उसको तब्दील कर दिया, उसके बारे में सीखेंगे। यहाँ पर वाकई कुछ यूं है कि 8 रोज के बाद, यानी पहले यीशु के जाहिर होने के जो वक्त हैं वो उसी दिन की है जिस दिन यीशु जिंदा हुआ। उसी शाम को यीशु 2 शागिर्दों पर जाहिर हुआ, उसी रात को यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर हुआ जब वो इकट्ठे थे। लेकिन यहाँ पर 8 रोज का वक्फा है। 8 रोज के बाद यीशु तूमा पर जाहिर हुआ और बाकी शागिर्द भी साथ थे, और तूमा उस वक्त अपने आप को मजबूत कर चुका था कि मैं उस वक्त तक यीशु के जिंदा होने का यकीन नहीं करूंगा जब तक अपने जो उंगलियां हैं वो अपने मेखों के सुराखों में न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में न डाल लूं, मैं हरगिज यकीन ना करूंगा। यानी वो बड़ा मजबूत हो चुका था कि मैंने अपनी सोच के मुताबिक यीशु को देखना है, वो अपनी अकल के मुताबिक, अपनी इस्तदलाल के मुताबिक या अपनी सलाहियत से, अपनी सोच और अपनी मंतक के मुताबिक यीशु को देखना और तजुर्बा करना चाहता था। और यीशु ने उसी की सोच के मुताबिक अपने आप को उस पर जाहिर कर दिया और उसी की सोच के मुताबिक या उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके दरमियान आकर खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। ये यीशु का पहला रद्द-ए-अमल था। यीशु जब अपने शागिर्दों के दरमियान दोबारा से आया, ये वही रद्द-ए-अमल था जो यीशु ने बाकी शागिर्दों को भी दिया जो खौफजदा थे, जो यीशु के जिंदा होने के बारे में शक का शिकार हो चुके थे, मायूस हो चुके थे। यीशु ने उनको भी यही कहा, तुम पर सलामती हो। फिर यहाँ पर तूमा को भी यही कहा कि तुम पर सलामती हो। अपने रद्द-ए-अमल का आगाज, अगरचे तूमा एक कमजोर शख्स साबित हुआ, कमजोर शागिर्द साबित हो रहा था, लेकिन यीशु ने जो जवाब उसे दिया वो वही था जो यीशु ने दूसरे शागिर्दों को भी दिया, या वही रद्द-ए-अमल था जो यीशु ने दूसरे शागिर्दों को दिया था। यीशु ने उस पर भी सलामती के लिए हुक्म जारी किया और यीशु ने उसके लिए सलामती चाहिए, अगरचे वो कमजोर शख्स। यीशु का रद्द-ए-अमल ये सिखाता है कि अगरचे हम कमजोर हों, अगरचे हम ईमान में कमजोर हों, यीशु रद्द नहीं करता। यीशु कमजोर ईमान को भी रद्द नहीं करता। जिस तरह यीशु मायूसों को रद्द नहीं करता, यीशु खौफजदा को रद्द नहीं करता, इसी तरह से यीशु कमजोर ईमान वालों को भी
रद्द नहीं करता। और यहाँ पर यीशु ने मुकद्दस तोमा की कमज़ोर ईमान के बावजूद भी उस पर भी उसी तरह से दुआ और सलामती भेजी जिस तरह से बाकी शागिर्दों में भेजता रहा। और फिर उसके बाद यीशु ने उसी की अकल के मुताबिक कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को दिखा और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद न हो बल्कि इत्काद रख। यहाँ पर यीशु ने उसको बदलने के लिए खूबसूरत उसी की सोच के मुताबिक तरीके को इस्तेमाल किया कि अपनी उंगली ला और मेरे हाथों को देख ले और अपना हाथ ला पास ला और मेरी पसली में डाल ले और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। यीशु के जख्म दिखाने ने तोमा को बदल दिया। यहाँ पर किसी भी इंजील में, चारों अंजील में से या यूहन्ना की इंजील में भी ये जाहिर नहीं किया गया कि तोमा ने ऐसा किया, बल्कि उसके एक फर्क रद्द-ए-अमल को बताया गया है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि उसने अपनी उंगली को उन सुराखों में डाला या अपने हाथ को उसकी पसली में डाला, बल्कि उसकी तब्दीली उसके जख्मों को देखने से मुमकिन हुई। उसकी जिंदगी में जो तब्दीली है यीशु के जख्म देखने से मुमकिन हुई। जब यीशु ने अपने जख्म उन्हें दिखाए, इसी तरह से तोमा के अलावा जब पहले भी शागिर्द जाहिर हुए उस वक्त भी यीशु ने अपने जख्म उन्हें दिखाए। यहाँ पर भी यीशु ने तोमा को अपने जब जख्म दिखाए तो तोमा इसके बजाय कि अपनी अकल के मुताबिक जो उसने कहा था कि मैं हरगिज यकीन न करूंगा, उसके बजाय उसके जख्मों को देखकर उसका ईमान तब्दील हुआ और वो बदल गया। यीशु के जख्मों ने उसे एहसास दिलाया कि यीशु जिंदा है। यीशु के जख्मों ने उसे एहसास दिलाया कि उसके ईमान को मजबूती की जरूरत है। हमें मुकद्दस मरकस की इंजील में, मुकद्दस मरकस की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी 22वीं से 24वीं आयत एक बदरूक गिरफ्ता बेटे के बाप के ईमान के बारे में बताती। बदरूक गिरफ्ता बेटे के बाप ने अपने बेटे को शागिर्दों के सामने पेश किया और शागिर्दों ने उसके लिए दुआ की, लेकिन वो बदरू ना निकल सकी। उसके बाद उसको यीशु के पास लाया गया और उस बाप ने यीशु के साथ जिक्र किया कि तेरे शागिर्द इसको ना निकाल सके। वहां पर खास तौर पर जो 22वीं से 24वीं आयत है उसमें यीशु और उस कमजोर ईमान बाप के दरमियान मुकालमा होता है। यहाँ पर 22वीं आयत में लिखा है कि वो यीशु को कहते हैं अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारे लिए कर, तू हम पर तरस खा, हमारी मदद कर। यीशु ने आगे कहा अगर तू कर सकता है। यीशु ने आगे सवाल किया कि तू मुझसे बात किए क्या कर रहा है कि तू कर सकता है, क्योंकि उसने कहा अगर तू कर सकता है तो हम पर तरस खा। उसने यह था कि जिस तरह शागिर्द इसे नहीं निकाल सके यीशु भी नहीं निकाल सकेगा। अगर तू कर सकता है तो हमारी मदद कर, हम पर तरस खा। यीशु आगे से कहता है क्या तू कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। फिर उसके बाप ने फिर चिल्लाकर कहा मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। यानी उसने फिर चिल्लाकर दरखास्त की कि वो तू अब मेरे ईमान को पहले मजबूत कर। इसी तरह से हमें भी अपने ईमान की मजबूती के लिए यीशु से मांगने की जरूरत है। यीशु का फजल ये है कि उसने अपने आप को तोमा पर जाहिर किया। यीशु का फजल ये है कि तोमा के ईमान में कमजोर होने के बावजूद जब अपने आप को तोमा पर जाहिर करता है तो उस पर सलामती भेजता है, उसके लिए सलामती चाहता है और फिर अपने जख्म उस पर जाहिर करता है जो उसके सबब से थे, जो तोमा के सबब से, जो दूसरे इंसानों के सबब से, जो शागिर्दों के सबब से थे। इसीलिए तोमा तब्दील हो गया। इसी तरह से मेरे अजीजों, जब हम ईमान में कमजोर होते हैं हमें खुदावंद से दुआ करने की जरूरत है और उसके फजल को याद रखने की जरूरत है कि उसका फजल कमजोर ईमान के लोगों के लिए भी है। उसका फजल मेरे लिए और आपके लिए। जब हम ईमान में कमजोर हो जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, खौफ में मुब्तला हो जाते हैं कि मैं कैसे बच सकता हूँ, जब हम अकल इस्तेमाल करते हैं, जब हम दलाइल देते हैं, जब हम दुनिया की सोच को, इस्तदलाल को इस्तेमाल करते हैं, जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं, तो उस वक्त हम ईमान में कमजोर हो सकते हैं। हम बहुत से दलाइल अपनी तरफ से अपने बचाव में पेश कर सकते हैं, या खुदा की मौजूदगी के इनकार में, या खुदा के फजल की कमी में हम अपने दलाइल पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम खुदावंद के फजल को देखते हैं कि इसके बावजूद कि हमारा ईमान कमजोर हो,
पर यीशु रहम करता है। इसी तरह से एक कमज़ोर ईमान जो बाप था, वो उसने तो यीशु पर शक किया अगर तू कर सकता है, लेकिन यीशु ने कहा कि जो ईमान रखता है, जो इत्काद रखता है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और फिर उसने कहा कि मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। फिर यीशु ने उसकी ज़िंदगी में मुआवजा किया और उसके बेटे को शिफा बख्श दी। यीशु कमज़ोर ईमानों का इलाज करता है। हमें शिफा की ज़रूरत है। हमें ना सिर्फ बीमारियों से, तकलीफों से शिफा की ज़रूरत है, हमें ईमान में भी शिफा की ज़रूरत है। हमें रूहानी शिफा की ज़रूरत है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो सके। हमें अपनी बेइत्कादी के इलाज के लिए भी यीशु से दुआ की ज़रूरत है और यीशु के ज़ख्मों की तरफ अपनी आंखें लगाने की ज़रूरत है। यीशु के ये ज़ख्म हमें यशायाह की किताब में एक पेशिन गोई की तरफ इशारा करते हैं। यशायाह की किताब का 53वां बाब जो है वो यीशु के ज़ख्मों की तरफ इशारा करता है। 53वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा है, तो भी उसने हमारी मुशक्क़तें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा, कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। यीशु के ज़ख्म हमें एहसास दिलाते हैं, यीशु के ज़ख्मों पर नज़र हमें एहसास दिलाती है कि वो हमारे लिए सताया गया, हमारे गुनाहों के बायस कुचला गया। तूमा को भी यही नजर आया। तूमा ने जब यीशु के ज़ख्म देखे तो फिर उसे हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी दलील पेश करे या अपनी अकल को इस्तेमाल करे। उसे ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी उंगली को उसके सुराखों, ज़ख्मों के सुराख में डाले या अपने हाथ को उसकी पसली में ज़ख्म में डाले, बल्कि उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि यीशु के ज़ख्म मेरे गुनाहों के लिए, और उसे अपनी शिफा का भी एहसास हुआ, उसे अपने ईमान की तब्दीली का भी तजुर्बा हुआ कि यीशु ने उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा कर दिया और यीशु के आने से, यीशु के ज़ाहिर होने से उसकी ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, उसके ईमान में तब्दीली आ गई, उसे शिफा का एहसास हुआ, उसके ईमान की शिफा का तजुर्बा उसे अपनी ज़िंदगी में हुआ। मेरे इज़्ज़तो, हम में से भी हर एक को ईमान में शिफा की ज़रूरत है। ईमान में मजबूती के लिए यीशु का तजुर्बा करने की ज़रूरत है ताकि हमारी ज़िंदगी भी तूमा की तरह बदल जाए। इसी तरह एक गीत है, गीत नंबर 294, हम उसके 2 मिसरे गाएंगे, फिर उसके बाद आगे और भी हम सीखेंगे। ये खास तौर पर यीशु के ज़ाहिर होने को ज़ाहिर करता है कि जब यीशु ज़ाहिर हो जाता है, यीशु नज़र आ जाता है, यीशु के ज़ख्म देख लेते हैं तो फिर ज़िंदगी बदल जाती है। तूमा ने जब यीशु के ज़ख्मों को देख लिया, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसका जीवन बदल गया और वो नया शख्स बन गया। यहाँ पर गीत नंबर 394 के हम एक मिसरे को गाएंगे जिसमें लिखा, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। हम थोड़ा सा मिलकर इस मिसरे को गाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, उस पर तूने अपना बहाया, उस पर अपना बहाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा
जहाँ की गंदगी से मुझे बचाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया, खून देकर मुझे गुनाहों से बचाया, इससे मेरा तन मेरी काया, इससे मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। यही हाल तूमा का हुआ। जब यीशु पर जाहिर हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई, नया बन गया। कमजोर ईमान वाला शख्स या दलाइल को इस्तेमाल करने वाला शख्स, अकल को इस्तेमाल करने वाला शख्स, जिसने ये कहा कि जब तक मैं यीशु को देख ना लूं, उसके जख्मों को देख ना लूं, उसमें अपनी जख्मों के सुराख में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं हरगिज यकीन ना करूंगा। ये बड़ा मजबूत था कि मैं हरगिज यकीन नहीं करूंगा। जब यीशु जाहिर हुआ, उसके जख्मों को देखा, उसकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह हमारी भी जिंदगी बदलने की जरूरत है कि हम यीशु के जख्मों का एहसास करें, जो मेरे लिए और आपके लिए। जब यीशु के जख्मों को हम नजर में ले आएंगे, जब हमारे तस्वर में, हमारी आंखों के सामने यीशु की सलीब और उसकी मसलूबियत और उसके जख्म होते हैं, तो हमें एहसास होता है कि वो मेरी और आपकी खातिर हुआ। और इसी ने तूमा की जिंदगी को बदला। उसने उसके जख्मों में उंगली नहीं डाली, बल्कि उसने जख्मों को देखकर अपनी जिंदगी को बदल लिया। इसी तरह यीशु हम पर भी इसी बात को जाहिर करता है कि वो हमारी खातिर हुआ। तूमा की जिंदगी यीशु के जाहिर होने से बदल गई। यीशु कमजोर ईमान लोगों का जाहिर होता है और उन्हें अपना तजुर्बा देता है, अपनी कुदरत का तजुर्बा देता है। यही तजुर्बा अमाल की किताब के 9वें बाब में जब पौलुस पर हुआ, जो शाऊल था, तो उसकी जिंदगी बदल गई। शाऊल पहले मसीहियों को मारने वाला, उन्हें गिरफ्तार करके लाने वाला शख्स था, उन पर तशद्दुद करने के लिए मशहूर शख्स था। लेकिन वही शाऊल पौलुस बन गया और यीशु की खातिर दुख उठाने वाला बन गया। इसी तरह सामरी औरत जो गुनहगार थी, यूहन्ना की इंजील के 4वें बाब में जब यीशु उस पर जाहिर होता है, उससे बातचीत करता है, उसकी जिंदगी को उस पर जाहिर करता है, उसकी जिंदगी की हकीकतों को उस पर जाहिर करता है, तो वही खातून जाकर अपने गांव में खबर देती है कि मुझे क्रिस्तुस मिल गया, मुझे मसीहा मिल गया। और उसके वसीले से बहुत से लोग यीशु पर ईमान ले आए। इसी तरह मेरे अजीजों, हमारे कमजोर ईमान में भी यीशु हमसे काम लेना चाहता है। यीशु का कमजोर ईमान पर जाहिर होना, तूमा पर जाहिर होना हमें मजबूती देता है कि जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हमारा ईमान कमज़ोर हो जाता है, हम ये सोचते हैं कि शायद खुदावंद हमारे साथ है या नहीं, या खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा या नहीं, खुदावंद जिंदा है या नहीं, खुदावंद की कुदरत मेरी ज़िंदगी में काम करेगी या नहीं। तो हमें यीशु से दुआ की ज़रूरत है, जिस तरह कमज़ोर ईमान बांटने की, कि मेरी बेइत्कादी का इलाज का मुझे और आपको ईमान की मजबूती के लिए यीशु से दुआ मांगने की ज़रूरत है। मुझे और आपको यीशु से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमारे ईमान को मजबूत करे, हमारा इलाज करे। और जब हमारा इलाज यीशु के वसीले से हो जाता है, यीशु हम पर जाहिर हो जाता है, अपनी कुदरत को जाहिर करता है, तो फिर हम बदल जाते हैं, हमारा ईमान भी बदल जाता है, हम कमज़ोर ईमान से मजबूत ईमान बन जाते हैं। तूमा ने कहा, है मेरे खुदावंद, है मेरे खुदा, माई लॉर्ड माई गॉड। और लॉर्ड के लिए मेरे खुदावंद के जो लफ्ज़ है यूनानी ज़बान में क्यूरियोस, उसका मतलब है मालिक, खुदावंद, ओनर, वो शख्स जो मालिक हो, जिसकी मर्जी से हम काम करें। क्यूरियोस यूनानी लफ्ज़ है लॉर्ड के लिए, खुदावंद के लिए, और उसका मतलब ये है टू होम अ पर्सन बिलोंग, यानी जिसकी मलकियत हम बन जाए। वही तूमा जो अक्ल इस्तेमाल करता है, वही तूमा जो दलाइल सुनना चाहता है, वही तूमा जो यीशु को देखकर ईमान लाना चाहता है,
जब यीशु के जख्मों को देखता है तो कहता है लॉर्ड, माय लॉर्ड, यानी मैं तेरा हूं, मैं आज से तेरा बन गया हूं और मैं तेरी मर्जी के मुताबिक काम करूंगा, तू मेरा मालिक है। इसी तरह से मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी में भी तब्दीली आने की जरूरत है। खुदा की कुदरत जब हमारी जिंदगी में काम करती है तो हमारा मालिक बन जाता है। फिर दुनिया हमारी मालिक नहीं रहती, फिर यीशु हमारा मालिक होता है, हम उसके ताबे हो जाते हैं, वो हमारा मालिक बन जाता है, आका बन जाता है, खुदावंद लॉर्ड बन जाता है। और लॉर्ड सिर्फ से खुदावंद ही कहना नहीं है, हम बड़ी दफ़ा दुआ में खुदावंद कहते हैं। बहुत बतेरे, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि बतेरे मुझे खुदावंद खुदावंद कहेंगे कि हमने तेरे नाम से मौजज़े नहीं किए। बहुत से लोग खुदावंद खुदावंद तो कहते हैं, लेकिन हकीकी खुदावंद क्या है? जो तुमा की ज़िंदगी से ज़ाहिर हुआ। तुमा फिर यीशु की खातर हिंदुस्तान में आ गया। हिंदुस्तान में मसीही कलीसिया मुकद्दस तुमा के वसीले से कायम हुई। बहुत से शागिर्द उधर यरूशलेम के चौके इर्द गिर्द के इलाकों में, ममालक में गए। मुकद्दस पालूस और मुकद्दस तुमा की खिदमत बड़ी अहम है। मुकद्दस पालूस ने सबसे ज़्यादा मिशनरी सफ़र किए और मुकद्दस तुमा ने एक बहुत दूर का सफ़र किया, यानी वो हिंदुस्तान में आया। और यहाँ पर मसीही कलीसिया की इब्तिदा मुकद्दस तुमा के वसीले से रखी गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कलीसियाएँ ये दावा करती हैं कि मुकद्दस तुमा के वसीले से यहाँ पर मसीहत का आगाज़ हुआ और यहाँ पर कायम कलीसिया, सरजमीन पर कायम कलीसिया मुकद्दस तुमा के वसीले से कायम हुई। मुकद्दस तुमा की तब्दीली इस हद तक एक हमारे लिए खूबसूरत सबक रखती है कि उसने जिस तरह से यीशु को अपना मालिक तस्लीम किया, आका तस्लीम किया, लॉर्ड माना, उसकी जिंदगी से ये तब्दीली नजर आती है कि हजारों जिंदगियां और आज लाखों की तादाद में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कलीसियाएं कायम हैं, जो कि मुकद्दस तुमा की तब्दीली का नतीजा है, जो यीशु के जाहिर होने से हुई। आज इसी तरह की तब्दीली हमारी ज़िंदगी में भी आने की ज़रूरत है कि हम भी तुमा की तरह यीशु को अपना खुदावंद माने। अगर हम कमज़ोर ईमान है तो यीशु से दुआ मांगे कि हमें मजबूत करे, अपनी कुदरत को ज़ाहिर करे, और उसकी कुदरत का ज़ाहिर होना हमें बदल देता है और हमसे काम लेता है, हमारे वसीले से ज़िंदगियों को तब्दील करने का बायस बनता है, हमारे वसीले से लोगों को यीशु के लिए जीतने का बायस बनता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम में से हर एक को ऐसी तब्दीली की ज़रूरत है जिस तरह की तब्दीली तुमा की ज़िंदगी में आई कि यीशु उस पर ज़ाहिर हुआ और यीशु के ज़ख्मों ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उसको एहसास हो गया कि मेरा आका मालिक तो यीशु है। हमें भी यीशु के ज़ख्मों की तरफ ध्यान लगाने की ज़रूरत है, जो मेरी और आपकी खातर, और ये ज़ख्म ही हमें एहसास दिला देते हैं कि वो ज़िंदा और हमारा मालिक है। उसने मेरे लिए और इस दुनिया के लिए जान दी है। हमें तुमा की तरह यीशु के लिए दुनिया को जीतने की ज़रूरत है। आए हम दुआ करिए अपने सब कुछ। खुदा कादिर बाप, हमारे ईमान को मजबूत कर। हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा पाक रूह मजबूत करता है, ताकि तेरे पाक रूह के फजल के वसीले से हम बरकत पा सकें, हमारा ईमान मजबूत हो सके और हम दूसरे लोगों के लिए भी तब्दीली का बायस बन सकें। उसी यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 340 गाएंगे, 340। बने रहो तुम, बने रहो तुम, गीत नंबर 340। यीशु में बने रहो।
इस हफ्ते में हमारी हिफाजत करे और महफूज रखे और शुक्रगुजारी की दुआ भी करेंगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू रहम और फजल करने वाला खुदा है। खुदावंद तेरा कलाम ये कहता है कि हर हाल में हमेशा हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। अगरचे खुदावंद हम एक दूसरे से दूर हैं, परेशानी में भी हैं, और खुदावंद मुल्की हालात और दुनिया के हालात भी इस तरह के हैं कि इंसान और दुनिया मायूस है, फिर भी खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें महफूज रखा है। दुआ करते हैं खुदावंद के ये मुश्किल हालात हमें ईमान में मजबूत करने का बायस हो, ताकि हम तुझे जान सकें, तुझे तजर्बा कर सकें और तुझ में महफूज होते हुए तेरा शुक्र अदा करते रहें और तेरी गवाही के लिए तैयार हो सकें। ये हफ्ता खुदावंद हम में से हर एक के लिए और हमारे घरानों के लिए मुबारक ठहरे। हम बरकत पाएँ, बीमारियों से बचे रहें, और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के लिए एक दफ़ा फिर दुआ करते हैं कि यीशु के नाम से ये वायरस खत्म हो जाए और यीशु के नाम से दुनिया बहाल हो जाए। खुदावंद तू हमारी हिफाजत कर, हमें संभाल और हम फिर से इकट्ठे हो सकें और तेरी इबादत तेरे घर में हो सके। मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश पर पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया कुल ईमानदारों के साथ होती रहे, आमीन।